हेलो। अभी तो मैं फुल ऐसे एक चिल मॉम सेश करने आने वाली थी, लेकिन मैंने सोचा काफ़ी प्रेजेंटेबल और अच्छी सी लग रही हूँ, सो अभी अभी ही ये वीडियो बना लेती हूँ। बट देन साथ साथ आई ऑल्सो वांटेड टू शो यू गाइज समथिंग. सो योर गर्ल हैज़ रियली बिन वर्किंग ऑन हर मेंटल हेल्थ दीज डेज, एंड दैट मीन्स skipping screen time completely. Not completely because it's part of my work, but like रात के टाइम तो बिल्कुल भी नहीं, and taking up a hobby instead. For me that hobby has been arts and craft, and I have been loving it क्योंकि एक तो it's like your hands are always doing something, your brain is always thinking about ideas. फ़ोन अगर यूज़ करने की ज़रूरत भी पड़ती है तो that's mostly for taking up any inspiration from Pinterest or someplace, but it's not doom scrolling. So the mediums that I have been working on these days आर फोम क्ले, वही वाला फोम क्ले वो जो बच्चे खेलते हैं ना जिससे, लिटरली वो. एंड लुक एट व्हाट आई क्रिएटेड. ओह माय गॉड, आई एम एक्चुअली सो प्राउड ऑफ दिस पीस. फुली 3D है, दिख आप लोगों को आई एम श्योर दिख रहा होगा. फुली 3D है. इट्स ऑल लाइक textury, but it is so pretty. So this was a painting that I made when I was pregnant, and I did not resonate with it anymore. बस ऐसे ही पड़ी हुई थी काफ़ी टाइम से, and I was not liking it, so I upcycled it to this. तो पीछे ये हुआ है इसके, but I feel like this is just so pretty. मैं अभी अभी सब उठा के ले आई हूँ because पिछले कुछ दिनों से this is what's been my life. I've been creating coasters by not using any स्टोर बॉट मोल्ड्स. जो भी कोई ढक्कन मिल जाता था, कोई भी चीज़ मिल जाती थी, तो क्ले को मिक्स करके ये बनाया फॉर एग्जांपल. देन आई ट्राइड मिक्सिंग टू मीडियम्स टुगेदर. ये मैं अपनी तरफ से जार बनाने की कोशिश कर रही थी, बट देन आई डेंट रियलाइज़ कि दोनों साइड्स ही खुले थे. सो आई एंडेड अप विद अ सिलेंडर. मगर हम इसके बॉटम का कुछ ना कुछ कर लेंगे बिकॉज इट लुक्स वेरी क्यूट. सेम गोज़ फॉर दिस वन. ये तो मुझे बहुत ही क्यूट लगा था. ओनली इफ़ इट वुड हैव टर्न्ड आउट विद अ बॉटम or a top, so it would have been perfect. But look at it, I feel like it's very pretty. Again, honestly speaking, I was not enjoying so much with resin, so I stuck to the foam clay bit, and I have been loving making charms so much. Like look at this chocolate coated strawberry. So I've been creating like dozens of these in a day because it's just really fun to do. Then your girl actually got some jewelry making thing. She turned all the charms into an infinity bracelet or a bracelet with all the charms here. As you can see, this is some lip gloss, that's coffee, that's a feeder, fries. Here are more charms that I made. In सबका पीछे का नजर आ रहा है. Look at that, very cute pizza charm, watermelon. My favorite is this one that says peopling is hard. We have a macaroon in here as well. बहुत सारे different charms बनाए, and it has really been a very therapeutic experience. This video was supposed to be completely different, but मुझे ऐसा लगता है कि जैसे मैंने इन्हीं बातों में बहुत सारा time निकाल दिया, but still like I needed to tell you guys all of this as well. लंबी वीडियो होने लगी है तो पॉडकास्ट स्टाइल वीडियो इसको बोल लेते हैं. विडकास्ट, पॉडकास्ट, व्हाटएवर. देखो सीन ये है कि अपनी मेंटल हेल्थ का बहुत ख्याल रखना पड़ता है, स्पेशली व्हेन यू आर अ न्यू मॉम, बिकॉज यू नीड टू डू थिंग्स फॉर योर सेल्फ व्हेन इट कम्स टू दैट, बिकॉज ओनली यू नो हाउ टू टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, एंड दैट इज़ जस्ट द रियलिटी. जिससे मुझे याद आया, बहुत सारी मेरी दोस्तें जो हैं अभी रिसेंटली मॉम्स बनी हैं, एंड देन दे आर कॉलिंग मी अप एंड दे आर लाइक अच्छा ये बताओ वो बताओ, दिस एंड दैट, दिस एंड दैट. And I thought that there are so many people that follow me that would also probably benefit from this advice. I know बहुत सारे लोग होते हैं जो आपको हर वक्त advice दे रहे होते हैं like 24/7. So this is not that kind of advice. This advice is basically for you. It's not for your baby. So I'm not going to tell you how to parent. I'm not going to tell you what to do, what not to do. But still I will share some little things with you guys and in a manner कि शायद जो समझ में भी आए. बिकॉज जब मुझे लोगों ने ये बातें इस तरह से बोली थी ना, तो मुझे थोड़ी सी खटकी थी कि लाइक लेट मी फिगर इट आउट ऑन माई ओन. सही है, लाइक चुप कर जाओ, सीरियसली, लाइक एवरीबडी प्लीज. So that happened. So first thing that I did wrong, that I would really request you guys कि मत करना. So right after you give birth आता है वो 40 day पीरियड वेर एवरी वन सेज रेस्ट करो, अपना ख्याल रखो. लोग पंजीरियाँ ला रहे होते हैं, कितनी सारी चीज़ें हो रही होती हैं. आई गेट इट, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. मगर किसी को ये समझ में नहीं आता कि साथ साथ अगर आपके अंदर ऐसे बहुत ज़्यादा ओवर एक्साइटमेंट का है, सो
ऑटोमेटिकली आप बहुत ज़्यादा एड्रेनलिन पे होते हैं. यू जस्ट हैव अ न्यू फैमिली मेम्बर, यू लव दैट लिटिल स्मॉल लिटिल क्यूट लिटिल बेबी, and you're so overexcited कि it's very normal for you to just go nuts and be like कि हाँ ठीक है, like मैं ठीक हूँ, मैं बिल्कुल सेट हूँ और मेरी तबीयत तो सही हो गई है क्योंकि I'm not pregnant anymore and this and that. But the thing is that they are right when they say that you need to rest properly for those 40 days. So what I did was पहले मैं ये एक annoying बाल जो मुझे annoying कर रहा है मैं ठीक कर लूँ. हाँ सही है, ये बाल नहीं है, shadow है. ओ बाल ही है. आई नो कि बहुत सारे लोगों का ये सीन होता है कि गेस्ट्स वगैरह नहीं आ रहे, कोई नहीं आ रहा, दोस्त वोस्त नहीं आ रहे, एंड यू आर जस्ट चिलिंग एट होम और यू आर बॉन्डिंग विद योर बेबी. ये एक अलग सेट ऑफ क्राइटेरिया होता है ऑफ न्यू मॉम्स. ये एक टाइप है मॉम्स है, न्यू मॉम्स. फिर एक होती हैं कि जिनको होता है मुझे सबसे मिलाना है, दुनिया से मिलाना है अपने बेबी को, और मैं चाहती हूँ ये मिलने आए, वो मिलने आई, मुझे मिलने क्यों नहीं आई, मुझे मिलने क्यों नहीं आया वाला टाइप्स. I was a mix of both, but I ended up being type B mom more because I wanted everybody I know to come meet my baby, to come meet me, because I was so happy कि मुझे था कि बाकी सब भी आकर मेरी खुशियों में join करें. Not realizing कि उस वजह से मुझे इतना फिजिकल स्ट्रेन पड़ा मेरी बॉडी के ऊपर, बिकॉज आई वॉज कॉन्स्टेंटली लाइक ओ फला बंदा आ रहा है, उसके लिए मैं ये भी सोच लूँ, वो भी सोच लूँ, ये भी करना है, वो भी करना है. अच्छा कमरे में भी अगर आएंगे तो कमरा साफ कर लूँ, ये कर लूँ, वो कर लूँ, अच्छा ऐसे कर लूँ, वैसे कर लूँ, अच्छा बेबी को तो मैं ही नहलाऊंगी, अच्छा अच्छा ये. I ended up going crazy, okay? And उस time पे I wasn't feeling anything, nothing. I was so overexcited. Obviously, I wasn't going to feel anything, but later, and not too later, it's only been 7 months that I've become a mom. So, मैंने शायद 7 videos भी नहीं लगाई हैं of being a mom. But अब आएंगी, because then there are a lot of people that need this version of me as well, because this is my life now. So, um, ऐसे बैड सीन हुआ है ना मेरे साथ, बिकॉज सारी हिम्मत अंदर से ख़त्म हो गई है, सारी चीज़ें ख़त्म हो गई हैं. आई एम नॉट गन लाई. सो आई रिसेंटली वेंट बैक टू द जिम, ठीक है. एंड पहले जो थी, सही है मैं हट्टी कट्टी दिखने में हूँ, अंदर से भी हट्टी कट्टी थी मैं, ओके. बट व्हेन आई वेंट टू द जिम, मैं इतनी खोखली हो गई हुई हूँ कि मुझसे 1 kg 2 kg के डंबल्स भी नहीं उठ रहे. सो यू कैन इमेजिन के कितना एक वीकनेस का भरमार. बट दैट्स ऑब्वियसली नॉट बिकॉज ऑफ नॉट रेस्टिंग. वो एक अनसेड और एक अनएक्सप्लेनेबल सा एक थकन, एक है दैट स्टेज इन योर बॉडी फॉर लाइक अ वेरी लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, अगर आपने अपने उस वाले फेज में अपना ख्याल नहीं रखा होता, विच आर दोज इनिशियल 40 days, और इवन आफ्टर दैट आई वुड से जितना रेस्ट कर सकते हैं प्लीज़ रेस्ट करें. बिकॉज मैं यहाँ बेचारी बहुत टॉर्चर से गो थ्रू की हूँ मेरी फिजिकल हेल्थ की वजह से, बिकॉज आई डिड नॉट फील अप टू द मार्क. मुझे ऐसा लगता था कि मैं अपना पेट भी अंदर नहीं खींच सक रही. दैट्स ड्यू टू डायजेस्ट रेक्टाई. बट when one thing feels weak, everything feels weak, you understand? So that would be tip number 1. You can take it and thank me later. और मैं भूल गई, सॉरी, एक चीज़ मेंशन करना. आई नो कि उस टाइम पे बड़ा दिल कर रहा होता है, बेबी की सारी चीज़ें मैं करूँगी, सारे डायपर्स मैं चेंज करूँगी, सारा कुछ मैं करूँगी. Great, I know, that's great. That was me, by the way. मैं ऐसी ही थी. And I was like crazy excited to bathe my baby also. But the thing is कि ये सब चीज़ें पूरी ज़िंदगी होती रहेंगी एक्चुअली फॉर क्वाइट सम टाइम. तो ये वो थोड़ा सा टाइम है कि जब सब अंडरस्टैंड भी कर रहे होते हैं कि ठीक है, लाइक टेक अ चिल पिल, प्लीज़ टेक अ चिल पिल. एंड इट्स बेटर इफ़ यू डू टेक दैट चिल पिल, it's really better if you do. Because बाद में when you're not feeling up to the mark, तब नहीं आप कह सकते कि मैं 40 days के लिए रेस्ट करने जा रही हूँ, बिकॉज नाउ आई डोंट फील अप टू द मार्क. दे विल लाइक चुप करो, डायपर चेंज करो भाई, क्या हो गया अपने बच्चे का. सो यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग. प्लीज रेस्ट, ओके प्लीज. नाउ कम्स द सेकंड पार्ट. ओ माय गॉड, इसके बारे में तो मैं पूरी किताब लिख सकती हूँ. सो द वेट, this is this is like a thing. So I think the most scary thing for me was gaining weight in pregnancy, okay? Because I was already a very, 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 very hatta katta, tall, broad, and handsome person. So I was like, oh wow, like, like even on top of this, okay, okay. So इस type की situation थी, ठीक है. थ्रू आउट माई प्रेगनेंसी मैंने 20 kgs गेन किए, पता भी नहीं चल रहे थे. आई वॉज लाइक वाह, माई मैजिकल बॉडी, इट डिड नॉट शो नो वेट. आई एम तो इनविंसिबल, आई एम तो द बेस्ट. बस सही है, कोई वेट का मसला नहीं, आई विल डू 100 बेबीज.
until 40 days went by. सही है. Actually, more than that went by. There were other factors to this also, मजाक से हटके. But those 20 kgs जो पहले छुपे हुए थे और मुझे लगा ओ यहाँ से तो अब गिरना ही शुरू होगा ना वेट, अब थोड़ी बढ़ेगा. ओए होए होए, was I wrong? ऐसा मेरा वेट बढ़ा that all that 20 kg plus more I feel, not really but it feels like it, वो सब ऐसी ऐसी जगहों पे आके बैठा है कि आई एम शॉक्ड. ओके, वो जो लोग कह रहे होते हैं ना माई बॉडी डजंट फील लाइक माइन एनी मोर, भाई उसका मतलब ये होता है दैट everything is so out of control कि things are wiggling on your body, there is random fat in places. When you look at it, there are stretch marks, there are things you can't do, like you know आपका आप ऐसे करो तो आपका tummy अंदर चला जाता है. There are basic things that you can't do anymore, and all of these things are so new because this is not how you knew your body, right? All of that came crashing down on me, dush. And then people say to breastfeed karte raho to you will be fine. Excuse me. The weight started gaining when I started breastfeeding, which was quite a weird story, by the way, because it's like in the beginning I couldn't, okay, because my baby was not accepting it. But she started accepting it after a month, and that is when the process started, basically, okay. बट वहाँ से जो डाउन हिल गए, ऑब्वियसली ब्रेस्ट फीड करने के लिए योर बॉडी विल पुट ऑन सम वेट बिकॉज इट नीड्स टू प्रोवाइड मिल्क फॉर द बेबी, एंड दैट इज़ वेयर इट स्टार्ट्स योर प्रोसेस. होता ही है कि जितना ब्रेस्ट फीड करते जाओ करते जाओ करते जाओ करते जाओ, वक्त के साथ या तो आपका वेट कम होता जाएगा या तो ज़्यादा होता जाएगा, बिकॉज आपकी बॉडी पे डिपेंड करता है. लाइक इट्स लाइक सबका अपना यूनिक एक्सपीरियंस होता है. मेरा ये था दैट आई एंडेड अप गेनिंग अ लॉट ऑफ वेट and I could not continue for a very long time. And I feel like maybe that is why it did not fall off. But no, there are so many women like me who don't end up in this situation कि breastfeeding ऐसे उतारेगा आपका वेट. नहीं भाई, नहीं हुआ उस तरह से. So इसके बारे में I am just giving you a warning. So when you are like pregnant and you don't look like you have gained weight but the scale shows it, please do not go crazy and be like, wow, now I will treat myself. You should, but like not crazy. Okay, balance, balance. I want to be nice to us moms because I also want to be like थोड़ा सा सख्ती, थोड़ी सी please, थोड़ी सी, because बाद में बहुत भुगतना पड़ता है यार. Like I went through this, okay. I know कि मैं दो बातें mix करके कर रही हूँ, but that's because there are two versions of me. One is like please be nice to yourself, and the other one is like shut up, चुप कर जा. And then I'm like अच्छा okay. So you get it. You can end up having all of that weight on you afterwards as well. बाद में भी चढ़ता है. This is just what I'm telling you. Just what I'm telling you. And then I figured out कि ये हमारे genetics में भी है. Like my family. That पहले नहीं चढ़ता, बाद में चढ़ता है. And I was like, क्यों? That was so bad. But तरीके हैं उतारने के. I am on it. Let's see कितना टाइम लगता है, क्या होता है. I'm not going to be hard on myself. मगर फैक्ट बता रही हूँ, ठीक है. So just so that you guys are prepared. The third thing is schedule or routine. Baby's routine, your routine, एक ही बात है, right? So I know कि Instagram will always push अपने बच्चे को 7 बजे सुला दो. Your friends that live abroad or your siblings or whoever, they be like, our baby goes to sleep at like 7 because like, you know, blah, blah, blah. But like when you're living in Pakistan, 7 is like अभी चाय पी है हमने, you know, like अभी तो हमारा ऐसे रात जवान हुई है वाला system. So it's like you cannot possibly go nuts and be like 7 बजे मैं अपना बेबी सुला रही हूँ. हाँ, तो फिर आप क्या करने वाली हैं उसके बाद? आप भी जाकर सोने वाली है ना साथ में. ठीक है, for the first few months you will feel like wow, I've achieved such greatness कि मैं ये करने चाहती हूँ और ये मैं कर, मतलब मैं एक रूटीन डाल रही हूँ और ये कर रही हूँ वो कर रही हूँ. It's a small little baby. I'm just saying. ना स्कूल जाना है सुबह, ना कुछ करना है. जितना जल्दी सुलाओगे, जितना देर सुलाओगे, उठना उसने उसी टाइम पे जब आपकी नींद गहरी होगी. Like literally in the morning that little baby will wake up and will be like, उठ जा, खबरदार जे सोई, you know. So and yeah, I get it. Cortisol spikes in kids, which is why you should put them to sleep early, this and that. Try your best to do that. But
अपने आप को ना बिल्कुल ऐसे बाउंड नहीं कर लेना कि यू आर गोइंग नट्स अराउंड द बेबीज़ रूटीन। ये मुझे किसी ने एक टिप दी थी विच वाज एक्चुअली अ वेरी गुड टिप, लेकिन मैं उस वक्त इसको समझ नहीं पाई थी। मुझे लग रहा था मैं यही तो कर रही हूँ, बट मैं ये नहीं कर रही थी। आई वॉज नॉट इन द डेप्थ्स ऑफ दिस, विच इज़ कि बेबी की रूटीन में नहीं सेटल हो जाना, अपनी रूटीन में बेबी को सेट करना। सो डोंट स्टॉप लिविंग योर लाइफ। इसका मतलब ये था, डू वॉट यू ऑलवेज बिन डूइंग, but take your baby along with you and let them sleep wherever they want to sleep, wherever you are। शोर में, खामोशी में, लाइटों में, म्यूजिक में, हर जगह पे आदत डालो so that you can keep living your life and enjoy having a baby rather than this कि एक फुस हुए हुए कमरे में खामोशी में आप हर वक्त बस पड़े हुए हो और आप बोल रहे हो हाय मैं तो ये भी नहीं कर सकती वो भी नहीं कर सकती, और आपकी आंखें बत्ती देखने को तरस जाएं। मैंने अपने साथ ये किया है, सो आई एम टेलिंग यू गाइस दैट ये मत करना, सिर्फ डिप्रेस होकर रह जाओगे। प्लीज़ लिव योर लाइफ। हाँ, देयर कैन बी अ रूटीन दैट यू शुड फॉलो, बट एक बैलेंस भी होना चाहिए ना कि चलो 5 days a week रूटीन फॉलो हो रहा है, 2 days ऐसे हैं जहाँ पे नहीं फॉलो हो रहा है, एंड इट्स ओके बिकॉज सारी चीज़ें पाकिस्तान में रात में होती हैं। सारे दोस्त आपको 8 बजे के बाद बुलाएंगे। अगर आप कोई अर्ली डिनर भी करने जा रहे हो ना, अर्ली, तो वो भी 8 साढ़े 8 बजे। इट्स नॉट बिफोर दैट। वो भी मैं कह रही हूँ इतना अर्ली है कि बस, बट you say what you know what I'm saying। मैंने अभी अपने आप को कितनी मुश्किल से समझाया है, where I've been like फातिमा रिलैक्स, प्लीज रिलैक्स। अच्छा, ये होगा थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल, ऐसे क्लॉक कर रही हूँ मैं इस बात को कि ये बहुत कंट्रोवर्शियल है, बट लाइक आई एम गोना टेल यू गाइस। सो द थिंग इज़ कि आपको हर जगह लोग मिलेंगे, एंड शुरू शुरू में आप भी वही होगे कि बेबी को ना इस चीज़ की आदत नहीं डालनी, उस चीज़ की आदत नहीं डालनी। मैं भी वही थी, ठीक है, और हार्ड कोर वही थी मैं कि नहीं नहीं, ज़्यादा गोदी में नहीं लेना प्लीज़, गोदी की आदत नहीं डालनी और वो फंस जाएगी गोदी में, एंड दिस एंड दैट, और इस चीज़ की आदत नहीं, उस चीज़ की आदत नहीं। यू नो व्हाट, इट्स ऑल क्रैप। रीज़न बीइंग, लिटरली जैसे ही 7-8 महीने के बेबीज़ हो जाते हैं, they are going to start crawling and they are going to start arching their backs like this, and you will taras ke godi mein aaja, and they will not come in godi, and that you will be crying tears saying I have baby fever because oh this stage was the best, or oh godi mein hote the and ab nahi hote, and blah blah। You know what, enjoy the godis as much as you want to। Let the dadi dada and the other family members, nani nana, let them enjoy the godis as much as they want to, because this phase will go by like this, and that is true। और कोई आदत नहीं लगती ब्रो, अगर लग गई, अगर, ये भी मैंने पढ़ा है साइंटिफिकली कि 3 दिन लगते हैं बच्चे की कोई भी आदत छुड़वाने में। ओनली 3 days, 3 days। टफ होंगे 3 days, बट आई थिंक by this point after becoming a mom you've seen the worst of everything, so you can deal with 3 days also, I'm gonna tell you that। So yeah, मैं उस स्टेज पे हूँ जहाँ पे मैंने आई थिंक ये 1-1.5 महीना टाइप किया था, जब मैं कहती थी नहीं गोदी की आदत मत डालो, गोदी की आदत मत डालो। उसके बाद आई वाज लाइक मैं इसको स्क्विश करके अपनी गोदी में से ग्लू कर दूँ कि ये बस मेरी गोदी में रहे, यू नो लाइक दैट। and it's okay because your babies, they want your love, that's all they want। हम लोग रूटीन्स पे फिक्सेट हो जाते हैं, कैसे नहाई हुई है, कपड़े ये हैं वो हैं, नीड्स टू लुक लाइक दिस, नीड्स टू बी लाइक दैट। हमें ये नहीं रियलाइज होता that all a kid really wants is love and cuddles and to feel happy and to feel close to you, and that is basically it at the end of the day। like वो भी अपने मन मर्जी के होते हैं, लाइक वट एवर दे वॉन्ट टू डू दे आर गोइंग टू डू। जो चीज़ उन्होंने नहीं करनी आप करवा के दिखाएं ज़रा, ऐसे नचवाएंगे ऐसी छोटी उंगलियों पे, दे आर नॉट गोना डू एनीथिंग, दे बी लाइक we are the maliks, you are the knockers, you will do as I say and we do it also। So there's that। अब आती है लास्ट एडवाइस, ठीक है, एंड दिस इज प्रॉबली द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन, एंड दिस इज़ वन दैट यू शुड टेक फ्रॉम मी। इस पे तो मैं ये भी नहीं बोलूँगी कि अगर आपको नहीं फॉलो करना तो आपकी मर्ज़ी, नहीं, इसको फॉलो करना ये ज़रूरी है, ठीक है। सो माई डॉक्टर, माई गाइनोकोलॉजिस्ट वॉज द वन हु टोल्ड मी कि तुमने अपने दिन के अंदर एक ऐसा घंटा निकालना है जिसमें तुमने सिर्फ वो करना है जो तुम्हारा दिल करे। यू आर नॉट गोइंग टू बी विद योर हस्बैंड एट दैट टाइम, यू आर नॉट गोइंग टू बी विद योर बेबी। अगर तुम अकेले रह सकती हो किसी कमरे के अंदर तो अकेले रह के करना वो 1 घंटा, या अगर तुम अपने कमरे के अंदर ही कोई सिक्लूडेड पोर्शन, कोई सिक्लूडेड टाइम उस वक्त सबको बोल के निकाल सकती हो तो निकालना।
Now, what used to happen? I will tell you. I used to wake up. The minute I used to wake up, I used to be like, where is my baby? My baby, I need my baby. Okay. ब्रश नहीं किया हुआ, ना दांत ना सर, कुछ भी नहीं, बस मुंह भी नहीं धोया हुआ, नाइट सूट पहना हुआ, एंड बस वो है कि कडल्स के लिए भागना है भाई, बेबी बेबी बेबी, ठीक है. लव्ड इट. आई वुडेंट स्विच दैट विद एनीथिंग. बट पूरा दिन, बाय द टाइम जैसे आप घड़ी देखते हैं, मैं जब घड़ी देखती थी तब रात के 9 बज चुके होते थे या 8 बज चुके होते थे, और मैं कहती थी पूरा दिन कहाँ गया. मतलब मैं तो अभी तक नाइट सूट भी नहीं बदला, और मैंने तो अभी कुछ भी नहीं किया और दिन खत्म हो गया. व्हाट डू यू मीन? और उस वक्त ऑब्वियसली आप कुछ करने के मूड में नहीं होते, कुछ नहीं, और सो टायर्ड, यू सो डन, यू लाइक बस मैं ऐसे सो रही हूँ अब, दैट्स इट. सो डोंट डू दैट टू योर सेल्फ, ओके. लाइक मेक श्योर दैट यू फाइंड दैट 1 आवर. मेरे लिए वो 1 आवर ऐसे होता है कि जैसे ये आर्ट्स एंड क्राफ्ट मैंने कर लिए, ठीक है, उसके अलावा अगर मुझे किसी और दिन वो 1 आवर यूटिलाइज करना है, तो आई लव डूइंग माई हेयर एंड इट डज टेक अप टू 1 आवर. सो आई विल गो टेक अ फ्रेश शावर, आई विल वॉश माई हेयर इन साइड माई हाउस, नॉट माई सैलॉन, और मैं अपने बालों को ब्लो ड्राई करूँगी या डाइसन कर्ल्स करूँगी या जो भी करूँगी, हेयर केयर करूँगी, वट एवर आई विल डू दैट, एंड आई मेक माई सेल्फ फील गुड. या मैं किसी दिन स्किन केयर करूँगी, जैसे आज का मेरा ये घंटा इज़ shooting this video right here and I'm doing it, okay. But this is what makes me feel like myself, Fatma as an individual, not Fatma as a wife or a mom. Sahi hai? And that is very important, I will tell you. So take this advice and act upon it if you are a new mom, because ये सारी advices और tips जो है ना वो बहुत काम की हैं, trust me with that. And with that, I'm going to finish this video. Guess why? Because my foam clay is waiting for me, and I'm going to go and make some more projects right now, because this is what gets me off of internet and just lets me enjoy something that I like to do. Doom scrolling कर करके सिर्फ डॉक्टर इंस्टा जो है वो मुझे बताता रहता है what I'm doing right as a mom, what I'm doing wrong as a mom, blah 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 blah, and it is just annoying. Like थक जाती हूँ मैं ये कर करके. वैसे I'm actually thinking कि अभी मैं ना गेम खेलती हूँ फॉर अ चेंज. दैट्स ऑल्सो समथिंग दैट आई कैन डू. लेट्स सी किस चीज़ की इजाज़त मिलती है. बट या दीज आर द फोम क्लेज दैट हैव बीन यूजिंग टू क्रिएट ऑल दोज प्रोजेक्ट्स. मैंने कहा मैं शेयर कर दूँ. ओके गाइज, बाय बाय, अंटिल नेक्स्ट टाइम.